اشرف ڈار نے کنٹرول لائن عبور کرتے ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ مقبول علائی بھی بہت خوش تھے۔ تمام ساتھیوں کے چہروں پر چمک تھی، وہ دمک رہے تھے۔ بعض آنکھیں پرنم تھی۔ اشرف ڈار زندگی میں دوسری مرتبہ خونی لکیر کے اس پار آزاد کشمیر آئے تھے۔ ان کا استقبال کرنے والوں کی تعداد محض 5 تھی، لیکن سب کو علم تھا کہ آگے چکوٹھی کے علاقے میں ایک جمع غفیری نے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں سے لکیر پار کر یہاں آئے تھے۔ ان میں سے بعض افغانستان میں تربیت مکمل کر کے واپسی کے لیے چکوٹھی میں رکے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ اطلاع ہوئی کہ ایک جاباز اشرف ڈار اپنے جاباز ساتھی مقبول علائی کے ہمراہ یہاں پہنچ رہا ہے تو ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ اشرف ڈار کا قافلہ آزاد کشمیر ریجمنٹ کے جوانوں سے بچتا بچاتا چکوٹھی پہنچ گیا تو وہاں تکبیر کے نعرے گونجنے لگے۔ اسی ہجوم میں بیروا کا محمد علی بھی تھا، جس نے بیروا اسپتال میں اشرف کے ساتھ بطور میڈیکل اسسٹنٹ کام کیا تھا۔ چکوٹھی میں مقبوضہ وادی کے آنے والے اس چھوٹے سے قافلے کا زبردست استقبال ہوا۔ سید صلاح الدین بھی وہاں موجود تھے، وہی صلاح الدین جن کے بارے میں یہ پیشگوئی کی جا چکی تھی کہ ایک روز جدوجہد آزادی کے قافلے کی قیادت کریں گے۔ احسن ڈار، سید صلاح الدین اور کمانڈر شمس الحق وہی ہیرو ہیں جن سے اشرف نے براہ راست سیکھا تھا۔ چکوٹھی بازار سے جب یہ جلوس گزرا تو دکاندار بھی دکانیں چھوڑ کر نکل آئے۔ دریا جہلم کے کناروں پر تکبیر کے نعرے کی پکار گونجنے لگی۔ لبیک اللہم لبیک کے نعرے دل کو گرمانے لگے۔ تبھی سید صلاح الدین کی آواز دور دور تک پھیلنے لگی۔ آج ہمارے شیر، اللہ کے شیر، کشمیری مسلمانوں کے لاڈلے اور جہاد کشمیر کے لیے کلاشنکوف اٹھانے والے ہمارے درمیان ہیں۔ اس عزم کے ساتھ کہ ایک بار پھر واپس جا کر بھارتی لٹیروں سے لڑیں گے اور آزادی حاصل کر کے ہی دم لیں گے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سخت سردی کے باوجود 2 افراد بہت تیزی سے برف پوش درختوں کی قطاروں میں اس طرح چل رہے تھے جیسے انہیں سردی نہ لگ رہی ہو۔ ان کے ہر طرف ملجگہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ درختوں پر برف ایسے جمی ہوئی تھی جیسے کوئی سہاگن اچانک ہی اجڑ کر سر پر راکھ ڈالتی رہی ہو۔ برف پاشی بند ہوئے اگرچہ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، تاہم کہیں کہیں روئی کے گالے اب بھی گر رہے تھے۔ شاید یہ برفیلی فوج کے بھٹکے ہوئے جوان تھے جن کو اب کہیں جا کر منزل ملی تھی۔ اس دل فریب ماحول میں ہر طرف خاموشی تھی، مکمل سناٹا تھا۔ ہاں، ان 2 افراد کی آہٹیں سن کر پرندے جب بھی بھرا مار کر اڑتے تو ہر طرف پروں کی پڑپڑاہٹ کچھ دیر تک ضرور گونجتی رہتی تھی۔ تبھی ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ اندھیرا ہونے والا ہے ٹیپو میرے بھائی، ایک مسافر نے دوسرے سے کہا۔ ہاں، بہت جلد تاریکی چھا جائے گی، ٹیپو نے جواب دیا۔ وہ سردیوں اور برف باری کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کنٹوک نے اس کا سر ہی نہیں آدھا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم بر وقت وہاں نہیں پہنچ سکیں گے سکندر، مگر ہمیں ہر قیمت پر اور وقت پر وہاں پہنچنا ہے دوست، سکندر نے ہنس کر کہا۔ کیا ابھی سے ہمت ہار رہے ہو؟ ارے نہیں، بات صرف وقت کی ہے، وقت کو بھی ہم شکست دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیا نہیں؟ کیوں نہیں؟ ٹیپو نے ایک طویل سانس لے کر اپنے ہاتھوں کو بغلوں میں دبا لیا۔ وہ اونی دستانے پہنے ہوا تھا، اسی باعث سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔ یہی حالت سکندر کی تھی، اس کے دستانے اور زیادہ موٹے تھے۔ جلدی ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے گا سکندر۔ اب اتنی بھی مایوسی کی باتیں تو مت کرو۔ کیا چندہ ماما اور ستاروں سے بھی مایوس ہو گئے؟ تو کیا چاند آج رات میں نکلے گا؟ ٹیپو نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چاند تو ہر روز نکلتا ہے، سکندر نے جواب دیا۔ وہ اس وقت ماحول سے پوری طرح لطف اٹھا رہا تھا۔ دونوں دیر تک خاموش رہے، حتیٰ کہ پورا چاند اچانک ہی نمودار ہو گیا۔ ہر طرف چاندنی بکھر گئی۔ وہ کچھ دیر قبل سورج کو غروب ہوتا دیکھ چکے تھے، اب چاند طلوع ہو چکا تھا۔ سورج نے غروب ہوتے وقت اپنی ٹھنڈی اور شفق جیسی لال روشنی سے درختوں کے سروں پر چادر ڈال کر اتار لی تھی۔ اس وقت وہ لوگ ایک گھاٹی میں تھے جہاں سے پہلگام کی طرف ایک رستہ جاتا تھا۔ چاند طلوع ہونے سے قبل وہ جس جگہ پہنچے وہ درختوں سے پٹی پڑی تھی، ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ قدموں تلے ایسا لگ رہا تھا جیسے سبز قالین بچھا ہو، کہیں بھی کوئی جگہ سبزے سے خالی نہیں تھی۔ اس وقت وہ ایک تنگ سی وادی میں تھے، یہی پالے بھرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور یہی چاند نے اندھیروں کے پردوں میں
जगह जगह रोशन सुराख कर दिए थे। शाम के बाद की हवा दरख्तों के सरों पर तैर रही थी। अब तो चांदनी चटकने के बाद जंगल भी मदहोश होकर गाने लगा था। दरख्तों से गिरने वाली फूक जैसी बर्फ इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन चेहरों के खुले हिस्से पर जरूर लग रही थी। सिकंदर ने एक तवील सांस लेते हुए दरख्त से टेक लगा ली, फिर नींदराज हो गया। आराम करोगे यहाँ? टीपू ने पूछा। हाँ, थोड़ा सा। चाय पियोगे? नेकी और पूछ सिकंदर हंसकर बोला। तभी जुबी का हंसता मुस्कुराता चेहरा इसकी नजरों के सामने नाचने लगा। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसीलिए अंदाज में इसे देख रही थी। बताए बगैर पहलगाम चलने पर वो कितनी नाराज होगी, इसका सिकंदर को अच्छी तरह एहसास था। टीपू ने थर्मास से चाय थर्मास के कप ही में उंडेली और सिकंदर की तरफ बढ़ा दी। सख्त सर्दी के बाइस चाय प्लास्टिक कप में आते ही ठंडी होने लगी। पहले तुम पी लो। सिकंदर ने आंखें मूंद ली। टीपू ने नीम गर्म चाय का घूंट लेकर सिकंदर की तरफ देखा। चांदनी इसके चेहरे को रोशन कर रही थी। टीपू ने भी आंखें बंद कर ली। तभी इसे सिकंदर के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये सर्द रात, ये तन्हाई और ये नींद का बोझ। हम अपने शहर में होते तो अपने घर जाते। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गहरी नजरों से आने वाले का जायजा लिया। वो तेज तर्रार शख्स लग रहा था। इसकी मूछें गजब की थी और आंखों में दरिंदगी के साथ जहानत की भी चमक थी। वो दिल्ली से आया था, दिल्ली सरकार का फुर्स्तादा था। इसकी गुफ्तगू में नरमी थी, लहजा शीरी था, मगर एक एक लफ्ज से एतमाद झलक रहा था। हालात बता रहे हैं कि आप शरीफ वीपी सिंह की हमायत करेंगे मुफ्ती साहिब। दिल्ली के इंटेलिजेंस की एजेंसी के इस बहुत अहम शख्स ने धीमे लहजे में कहा। क्या ये बात सच है? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से आपके राब्ते खुफिया तो नहीं रहे? मैं खुफिया राब्तों का कायल नहीं मिस्टर राव। मकबूजा कश्मीर के भारत नवाज मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। लेकिन ये तय है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो अवाम के मफाद में होगा, कश्मीरी अवाम के लिए होगा। मगर आजकल कश्मीर की हसीन वादी में जो अफरा तफरी फैली हुई है, क्या ये भी कश्मीरी अवाम के हक में है? कश्मीरी अवाम का इन हंगामों से कोई ताल्लुक नहीं, मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। ये जल्द से जुलूस हड़तालें चंद दिनों की बात है। अवाम एक दिन जरूर बड़े भुले की तमीज कर लेंगे और हड़तालों का साथ देने से भी इनकार कर देंगे। क्या आपको अपनी इस बात पर बल्कि दावे पर खुद भी यकीन है सर? राव ने पूछा। 100%, मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 22 नवंबर के इंतखाबात में अवाम पुरस्कून तौर पर वोट डालने जरूर जाएंगे, राव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो राह का एक आला अफसर था। इसे खास तौर पर इस मकसद के लिए कश्मीर भेजा गया था ताकि वो नवंबर 1999 के इंतखाबात के लिए सर्वे करे, तज्जियाती रिपोर्ट तैयार करे और मुस्तकबिल की हुकूमत के लिए मनसूबा बंदी के साथ साथ ऐसे लीडरों से इंटरव्यू करे जो नई हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां संभाल सकते हों। राह के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी फारूक अब्दुल्ला से पूरी तरह मायूस हो चुका था। इनकी हर रिपोर्ट फारूक के खिलाफ थी। वो गुलाम रसूल कार, हबीबुल्ला, अब्दुल अहद वकील, मोहम्मद शफी भट्ट और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज से मिल चुका था। ये सब लोग लोकसभा के लिए उम्मीदवार थे। इनका कहना था कि अवाम इनके साथ है। मुझे यकीन है, मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। वो जनता दल के मरकजी लीडर वीपी सिंह से हाल ही में मिल चुके थे। इन्हें राजीव गांधी से ज्यादा रोशन ख्याल सेकुलर समझते थे। क्या आप ये तराशा पढ़ने की जहमत दोबारा फरमाएंगे सर? राव ने मुफ्ती सईद के सामने अखबार पैट्रियाट की एक कटिंग रख दी। ये 24 अक्टूबर 1999 का शुमारा था। इसी लम्हे ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और एक तेजो तर्रार सी लड़की अंदर चली आई। अरे बेटे तुम! मुफ्ती सईद के चेहरे पर वाज़ेह तौर से मुसर्रत के तासुरात उभरे। इनसे मिले मिस्टर राव, ये रबिया है, डॉक्टर रबिया सईद, मेरी बेटी, लालवेद अस्पताल में काम करती है। आदाब। राव दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रबिया ने इस पर एक सरसरी सी नजर डाली और बाप की खैरियत पूछकर वापस चली गई। यस सर, आप पढ़ें, राव ने एक बार फिर तराशे पर हाथ रखते हुए कहा। मुफ्ती सईद बावाज़े बुलंद पढ़ने लगा।
भारत में किसी को कानो कान खबर नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि कश्मीर बहरान की तरफ बढ़ रहा है। श्रीनगर में रोजाना धमाके होते हैं। इन धमाकों से शहर लर्ज उठता है। ज्यादातर निशाना मरकजी हुकूमत के दफातर बन रहे हैं। वादी में क़यादत का खला पैदा हो गया है। पूरी वादी पर पाकिस्तान के हमायत याफ्ता कश्मीर लिबरेशन अलाउंस का कब्जा है। मुफ्ती सईद इस तराशे को पढ़ने के बाद सर हिलाते रहे, कुछ ऐसे जैसे बोलने के लिए अल्फाज मुंतखब कर रहे हो। आखिर उन्होंने तराशा एक तरफ रखकर बहुत कमजोर से लहजे में कहा, ये गलत है। क्या गलत है जनाब? ये तबसरा या आपकी राय? राव का लहजा अब भी बहुत नरम था। ये तबसरा। मुफ्ती सईद ने एक तवील सांस लेकर जवाब दिया। वादी पर पाकिस्तान के हामियों का कब्जा अगर होता तो मैं और आप इतने सुकून के अंदाज में बैठकर बातें नहीं कर सकते थे मिस्टर राव। आपका लहजा अब भी कमजोर है सर। बात लहजे की नहीं, तज्जिए की है। मेरी याददाश्त अगर साथ दे रही है तो अगस्त में स्टेट्समैन के एडिटर LM कोटरू ने भी इस नोयत का तबसरा करते हुए इल्जाम लगाया था कि वादी में ऐसा कोई भी नहीं जो इंतहा पसंदों को चैलेंज कर सके। क्या ये गलत इल्जाम था? 100% गलत। मुफ्ती सईद इस बार पूरे इत्मीनान अंदाज में बोले, आप मुझी को देख लें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मेरी हद तक तो ये बात गलत साबित हुई ना। आप दुरुस्त कहते हैं जनाब। राव ने एक तवील सांस ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से आपका क्या इख्तिलाफ है? यही कि इसकी क़यादत इंतहा पसंदों का मुकाबला करने में बुरी तरह नाकाम रही है। वो पार्टी लीडर जिसकी मौजूदगी का हर गांव और हर कस्बे में दावा किया जाता है, लापता है। अब जबकि दारुल हुकूमत जम्मू मुंतकिल हो रहा है, वादी में इंतजामिया हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगी। शेख खानदान के करीबी दोस्त मीर कासिम का भी यही ख्याल है। राव फातिहाना अंदाज में बोला, मैं राजा साहिब VP सिंह की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एक गैर मकबूल और गैर मौसर हुकूमत शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकती। वेद मेहरा और जमील कुरैशी साहिब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, लेकिन मैं जमील कुरैशी के इस दावे से मुत्तफिक नहीं कि जनवरी 1990 में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अभी जनवरी दूर है और ये इल्ज़ाम लगाना महज हमाकत होगी कि 26 जनवरी को अवामी जमहूरिया आज़ाद कश्मीर का क़याम अमल में आ जाएगा। ओह, तो इस मंसूबे की इत्तला आप तक पहुंच चुकी है। राव ने पहली मरतबा बेचैनी से पहलू बदला। मैं आंखें और कान खुले रखता हूँ राव जी। क्या आपने साबिक गवर्नर जगमोहन से इस मौजू पर दिल्ली में गुफ्तगू की थी? मोहन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं और वादी के मसाइल पर इनसे गुफ्तगू होती रहती है। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर राव को टाल दिया था। क्या यह मुमकिन है कि जगमोहन जी एक बार फिर कश्मीर के गवर्नर बना दिए जाएं तो हालात ठीक कर देंगे? राव ने पूछा। ये वो सवाल था जो राव और इंटेलिजेंस वाले हर लीडर से कर रहे थे। बात बहुत वाज़ेह थी। मकबूजा कश्मीर में जगमोहन को भेजे जाने की कोई तजवीज़ कहीं न कहीं जरूर मौजूद थी। मुमकिन है, बशर्ते कि इन्हें तमाम तर इख्तियारात दे दिए जाएं। मुफ्ती सईद ने फौरन जवाब दिया। सारे के सारे इख्तियारात? मतलब ये कि असम्बली तोड़ दी जाए, वादी की हुकूमत बर्खास्त कर दी जाए? जब तक वादी में एक शख्स सियाह सफेद का मालिक नहीं होगा, यहाँ पर दो अमली जारी रहेगी। राव साहिब, मुफ्ती सईद ने थके थके से अंदाज में जवाब दिया, यहाँ ऐसा शख्स रखा जाए जो रिमोट कंट्रोल ना हो, जो हर वक्त और सख्त तरीन फैसले भी कर सके। अगर मेरी ये बात नहीं सुनी गई तो कश्मीर के अलमिया की सारी जिम्मेदारी दिल्ली में मौजूद बहनों पर होगी, जो वक्त की पुकार भी नहीं सुन सकते। आखिरी सवाल सर, राव ने मुतमिन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, क्या आप जगमोहन जी को बतौर गवर्नर कबूल कर लेंगे? क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं जनाब, वो पहले भी तो गवर्नर रह चुके हैं। मुफ्ती सईद ने जवाब देकर सर सोफे से टिका लिया। राव उठ गया। इसका मिशन पूरा हो चुका था।